نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ عاشق کے ساتھ بھاگنے کے بعد خودکشی کا ڈھونگ رچنے والی معشوقہ، اتر کنڑا اور دکشن کنڑا اضلاع کی تازہ ترین خبریں۔ اصل مقیم معاملے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ محفوظ۔ راہل ہندو دہشت گردی کو لشکر طیبہ سے زیادہ خطرناک سمجھتے ہیں، پرساد کا بیان۔ برے دن میں کام نہیں آئی دولت، دوستوں نے چھوڑا عرب شہزادے کا ساتھ۔ جنوبی سوڈان، بھینسوں کے چوروں نے 40 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب کوئی گنجا نہیں رہے گا، ماہرین نے علاج ڈھونڈ لیا۔ کی بورڈ سے ملا چھٹکارا، جانیے جادوئی متبادل کا سہارا۔ اربوں ڈالر کی ادائیگی ڈیل کے تحت 4 سعودی شہزادے رہا۔ بنگلہ دیش میں قاتل باغیوں کی سزائے موت کی توثیق کر دی۔ تل ابیب میں دھماکہ، 2 فلسطینی اور 1 اسرائیلی ہلاک۔ یورپ جانے کے شوقین پاکستانی ترکی میں انسانی اسمگلروں کے ہتھے چڑھ گئے۔ ایران میں ضمیر کی قیدی 17 اسیرات کو غیر انسانی حالات کا سامنا۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی آج کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے آج کی خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر اتر کنڑا اور دکشنا کنڑا کے بعض علاقوں سے ہے۔ یہاں سے تازہ ترین خبریں سیدھی بات کو موصول ہوئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پہلی خبر اپننگڑی سے ہے۔ یہاں ایک لڑکی نے گھر سے بھاگنے کے بعد گھر والوں کو ندی میں ڈوب کر خودکشی کر لیے جانے کی خبر پہنچا کر گھر والوں اور مقامی لوگوں کو پریشان کرنے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اطلاع کے مطابق پتور کے قریب سروے نامی علاقے کی ایک لڑکی ایک لڑکے سے عشق کر رہی تھی۔ گھر والے شادی کے لیے رضامند نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے عاشق کے ساتھ کوڈگو ضلع کے سوموار پیٹ بھاگ گئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق لڑکی نے فون کر کے گھر والوں کو نیتراوتی ندی میں ہونے کی خبر دیتے ہوئے خودکشی کرنے کی اطلاع کر دی ہے۔ یہ دیکھ کر گھر والے اور مقامی افراد رات دیر گئے تک ندی میں اتر کر لڑکی کو ڈھونڈنے لگے۔ بعد میں رات دیر گئے موبائل فون کا لوکیشن جاننے کے لیے پولیس تھانے میں شکایت درج کی تو معلوم ہوا کہ لڑکی کوڈگو ضلع میں موجود ہے۔ پولیس چھانبین کے لیے کوڈگو ضلع نکل گئی ہے۔ دوسری خبر پتور سے ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا بچہ اپنے نانا کے پیچھے چلتے چلتے اچانک باغ میں موجود ایک کنویں میں گر کر ہلاک ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ اطلاع کے مطابق بچے کی شناخت شوریہ ولد سدرشن کے حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ یہ بلناڑ میں واقع اپنے نانا کے گھر میں کھیل رہا تھا کہ نانا جب باغ کے لیے نکلے وہ بھی ان کے پیچھے نکل گیا اور نانا کو اس کا اندازہ نہیں ہو پایا اور باغ میں موجود ایک کنویں میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ پولیس تھانے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ تیسری خبر پڑوبدری سے ہے۔ یہاں گلے سے ہار جھپٹ کر فرار ہونے والے 1-2 بائک سوار لٹیروں نے راستہ پوچھنے کا بہانہ بنا کر ایک عورت کے گلے سے ہار چھین کر فرار ہو گئے ہیں۔ خاتون کی شناخت سرلا شیٹی کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ پولیس کو اطلاع کر دی گئی ہے۔ اسی طرح اڈوپی سے ایک اور حادثے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ منی پال کے ایم کالج کے طلباء کی ایک کار یہاں بے قابو ہو کر ایک درخت سے ٹکرا جانے کے نتیجے میں کار پر سوار 4 طلباء کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ زخمیوں کی شناخت ابھے راج سنگھ، ابھے شیخ گوسوامی، اکشت راج، انیتا اشوک کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سب کے سب نشے کی حالت میں تھے۔ ایک اور خبر اڈوپی سے حادثے کی موصول ہوئی ہے۔ بس کے انتظار میں کھڑی ایک طالبہ سے ایک تیز رفتار کار ٹکرا جانے کے نتیجے میں طالبہ کے سخت زخمی ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ طالبہ کی شناخت باگل کوٹے ضلع بادامی تعلقے کی مقیم سنندا کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ کار ڈرائیور ہریش کے خلاف شکایت درج کر لی گئی ہے۔ یہاں پننگڑی سے ایک خاتون پر حملہ کرنے کی خبر بھی موصول ہوئی ہے۔ زمین جائیداد کے معاملے میں رتناوتی نامی ایک خاتون پر اس کا دیور یعنی شوہر کا بھائی لوہے کی سلاخ سے حملہ کر کے زخمی ہے۔ معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسی طرح انکولا سے آگ حادثے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ کمٹا کے راستے میں واقع ایک بائک گیریج میں رات کے وقت یہ آگ حادثہ پیش آیا۔ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی آگ میں پوری دکان جل کر خاک ہو گئی ہے۔ یہ شری دھر بالا کرشنا نائک نامی شخص کے ملکیت میں گرے جاتا ہے۔ اسی طرح منجیشور سے ایک دکان میں گھس کر ہفتہ وصول کے نام پر حملہ کیے جانے کی خبر بھی موصول ہوئی ہے۔ اپڑا پیٹے میں واقع ایک ریڈی میڈ ملبوسات کی دکان میں کچھ حملہ آوروں نے گھس کر ہفتہ وصولی کی کوشش کی۔ نہ ادا کرنے کی صورت میں دکان میں موجود ملازمین قلندر ارشاد، ابراہیم، اسماعیل، سنان، انشا وغیرہ پر حملہ کر کے زخمی کر دیا گیا ہے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ سپریم کورٹ نے آج آسام میں جاری شہریت تنازع سے متعلق تقریباً آدھا درجن عرضداشتوں پر سماعت کرتے ہوئے اصل مقیم شہریت معاملے میں اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جسٹس رنجن گوگوئی اور جسٹس روہٹن نریمن کی بینچ کے سامنے آج جمعیت علماء ہند، آل آسام مائنارٹی اسٹوڈنٹ یونین، کانگریس کے ساتھ ممبران اسمبلی اور آدیواسی اور بنگالی ہندوؤں کی جانب سے دائر عرضداشتوں پر کئی گھنٹے تک بحث ہوئی۔ آمسو کی پٹیشن پر جمعیت علماء ہند کے وکیل کپل سبل نے، کانگریس کے ممبران اسمبلی کی پٹیشن پر سلمان خورشید نے
आदिवासी अर्जदाश्तों पर इंदिरा जयसिंह और बंगाली हिंदुओं की 2 अर्जदाश्तों पर संजय हेगड़े ने बहस की। बहस मुकम्मल होने के बाद बेंच ने फैसला महफूज कर लिया है। अब खबर अहमदाबाद से। मरकजी वजीर कानून और सीनियर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने आज इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी हिंदू या भगवा दहशतगर्दी को लश्कर तैयबा जैसी दहशतगर्द तंजीम से ज्यादा खतरनाक समझते हैं। मिस्टर प्रसाद का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब एक दिन पहले गुजरात में इंतखाबी तशहीर के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और मिस्टर गांधी पर लश्कर सरगना हाफिज सईद की पाकिस्तानी अदालत की तरफ से रिहाई पर ताली बजाने का इल्जाम लगाया था। मिस्टर प्रसाद ने आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमले के बाद इस वक्त की अमरीकी वजीर खारिजा हिलरी क्लिंटन हिंदुस्तान आई थी। उस वक्त के वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें खाने की दावत दी थी। इसमें राहुल भी मौजूद थे। उनके नज़दीक अमरीकी सफीर टिमोथी रोमर बैठे हुए थे और दोनों ने कई उमूर पर बातचीत की थी। उन्होंने राहुल से पूछा था कि लश्कर तैयबा के बारे में उनका क्या ख्याल है। राहुल ने कहा कि ये तो है, पर हिंदुस्तान की हिंदू दहशतगर्दी इससे ज़्यादा खतरनाक है। अब खबर सऊदी अरब से मुताल्लिक़। इंसिदाद बदउनवानी कमेटी के तहत गिरफ्तार सऊदी अरब पति शहजादा अल वलीद बिन तलाल के बुरे दिनों में अब उनके अहबाब ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। पिछले बरसों में मगरबी ममालिक के साथ उन्होंने खुशगवार तिजारती रिश्ते हमवार किए थे, लेकिन सऊदी अरब की इंसिदाद बदउनवानी मुहिम के दौरान कई हफ्ते पहले उनकी हिमायत में या उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। अरब मुल्कों की सबसे अमीर की फहरिस्त में 18.7 बिलियन अमरीकी डॉलर के मजमूई अमलाक के साथ अल वलीद बिन तलाल ट्विटर के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर भी हैं। उन्होंने एप्पल, मर्डोक की न्यूज़ कॉर्प, सिटी ग्रुप, फोर सीजन, फेयरमार्ट और मोनपिक होटल चीन में सरमायाकारी की है। वो अमेरिका और मशरिक़ वस्ता में उबेर के लिए राइड शेयरिंग सर्विस के सरमायाकार भी हैं। 62 साल इस अमीर शहजादे ने कई शिरकतदार बनाए और मगरबी मुल्कों की तिजारत में कई बिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी की, लेकिन ब्लूमबर्ग के मुताबिक उनमें से चंद ने ही अब तक उनकी खुलेआम हिमायत का इजहार किया है। अब खबर जनूबी सूडान से। जनूबी सूडान के सूबे जोंगली में भैंसों के चोरों के गल्लाबाई करने वाले एक कबीले पर हमले में 40 अफराद हलाक जबकि 19 जख्मी हो गए हैं। चोरों ने इस दौरान भारी तादाद में खवातीन और बच्चों को अगवा भी कर लिया। सूबे के वजीर इत्तलात जेकब आकेश वेंगवेत ने इतला दी है कि हमसाया सूबे बोमा से एक मुसल्लह गिरोह ने भैंसें चोरी करने की कार्रवाई के दौरान फायर खोल दिया, जिससे 40 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो गए हैं। हमलावरों ने 1000 से ज़ायद भैंसें भी चोरी कर ली। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तबक़ों के दरमियान अमन के क़याम की तमाम तर कोशिशों के बावजूद बोमा से आने वाले क़ज़्ज़ाक़ों की जारहियत अभी तक जारी है। अब खबर जनूबी कोरिया से। जनूबी कोरिया के माहिरीन ने एक तहकीक के नतीजे में गंजपन का इलाज दरियाफ्त कर लिया है। सिविल की यांसोई यूनिवर्सिटी ने चूहों पर 28 दिन तक एक बायोकेमिकल का इस्तेमाल किया, जिससे उनके जिस्म को बढ़ने में मदद मिली। इस बायोकेमिकल का नाम PTD-DBM रखा गया है, जिसके बारे में प्रोफेसर कांगेल चोई ने बताया कि इस नई दरियाफ्त की मदद से सिर्फ गंजापन का ही नहीं बल्कि खराब और झुलसी हुई जिल्द का भी इलाज मुमकिन हो सकेगा। अब खबर दुबई से। टेक्नोलॉजी कंपनी टैप सिस्टम्स ने ऐसे लोगों के लिए एक नया आला मुतारिफ कराया है जो हकीकी कीबोर्ड के बगैर किसी भी सतह पर उंगलियों को हरकत में लाकर लिखने का अमल सर अंजाम देने की ख्वाहिश रखते हैं। इस नए आले का नाम टैप है, जिसमें एक दूसरे से मरबूत 5 हल्के होते हैं। हल्कों की इस कड़ी को इस्तेमाल कुनंदा अपने एक हाथ में पहन लेता है और इस तरह किसी भी छोटे के काबिल सतह को मुअस्सिर सूरत में कीबोर्ड और माउस में तब्दील करा देता है। यह आला सारिफ को पैगामात और मतन तहरीर करने और ईमेल इरसाल करने की इजाज़त देता है। इसके अलावा आले को स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, टैबलेट्स, आम कंप्यूटर्स और वर्चुअल चश्मों के साथ भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस खुसूसी आले की तैयारी का मकसद यह है कि सारिफ अपने घर में या घर से बाहर अपने स्मार्ट आलात को बदस्तूर इस्तेमाल में ला सके। अब खबर रियाद से। सऊदी अरब में करप्शन के इल्जामात में 3 हफ्ते से गिरफ्तार शहजादा मुतइब बिन अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया है। शहजादे को ये $1 अरब वापस करने के समझौते पर रिहा किया गया है। मजीद 3 शख्सियात से रिहाई के लिए शराइत तय पाई गई हैं। रिहाई के लिए समझौता करने वालों के नाम जाहिर नहीं किए गए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने बताया कि करप्शन के इल्जामात में 3 हफ्ते से गिरफ्तार शहजादा मुतइब बिन अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया है। शहजादे को $1 अरब वापस करने के समझौते पर रिहा किया। शहजादा मुतइब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के कजिन हैं और वो सऊदी अरब की नेशनल गार्ड के सरबराह भी थे। गिरफ्तार किए गए अफराद में से वो सबसे ज्यादा सियासी असर और रसूख रखने वाले शहजादे थे। सऊदी अरब में नई एंटी करप्शन कमेटी ने 11 शहजादों, 4 मौजूदा और दर्जनों साबिक वज़रा को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार होने वालों में मारूफ सऊदी कारोबारी शख्सियत शहजादा अल वलीद बिन तलाल भी शामिल थे। अब खबर बांग्लादेश से। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सन 2009 में बगावत करते हुए 74 अफराद को कत्ल करने वाले 139 सरहदी मुहाफिजीन को सुनाई गई सजाए मौत की तौसीक कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट के वफ्द ने इस हवाले से अपने ऐलान में कहा है कि सरहदी मुहाफिजों ने 57 कमांडरों समेत 74 अफराद को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा था। दारुल हुकूमत ढाका की एक अदालत की जानिब से सन 2013 में सजाए मौत सादिर करदा 152 मुल्जिमीन में से 139 को इस सजा की मंजूरी दे दी गई है, तो दीगर मुल्जिमान में से बास को उम्र कैद और बास की रिहाई का भी फैसला किया गया है। दिफाई वकील का कहना है कि वो इस फैसले के मतन का मुताला करने के बाद ही अपील कोर्ट जाने या ना जाने के हवाले से अपनी सिफारिशात पेश करेगा। याद रहे कि बांग्लादेश में शेख हसीना के बरसर इख्तिदार आने के 2 माह बाद 25 से 26 जनवरी सन 2009 में सरहदी मुहाफिज कुव्वतों ने बगावत करते हुए 74 अफराद को कत्ल कर दिया था। अब खबर फिलिस्तीन से। इसराइली रियासत के दारुल हुकूमत तल अबीब में आज मंगल के रोज होने वाले बम धमाके नतीजे में 2 फिलिस्तीनी जाँ बहक और 1 इसराइली की हलाकत की इत्तलात हैं। इसराइली पुलिस के मुताबिक याफा शहर में अल-सबा एक शॉपिंग प्लाजे के करीब जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक इमारत जमीन बोस हो गई। इसराइली पुलिस का कहना है कि मौके पर मौजूद 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि एक शदीद जख्मी कुछ बाद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। धमाके में 4 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। इसराइली पुलिस की खातून तर्जुमान ने बताया कि धमाके में मारे जाने वाले 3 में 2 फिलिस्तीनी हैं, जबकि 1 इसराइली है। एक फिलिस्तीनी का ताल्लुक शिमाली फिलिस्तीन के अत्तैबा शहर से है, दूसरे का गरबी उर्दून से। पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। अब खबर तुर्की से। तुर्की में पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले जंजीरों से जकड़े 57 पाकिस्तानियों को बाजियाब कर लिया है। तुर्क रोजनामा हुर्रियत के मुताबिक मकामी पुलिस ने इस्तांबुल में खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई करते हुए पीर के रोज छापों के दौरान 57 पाकिस्तानी अलगामालियों को बाजियाब कराया है, जिन्हें इंसानी स्मगलरों ने एक इमारत के तहखाने में कैद किया। इन अफराद को $10,000 की एवज यूरोप पहुंचाने का झांसा देकर तुर्की लाया गया था और उन्हें कहा गया था कि वो ये रकम यूरोप पहुंचने के बाद अदा करें। मकामी पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयों में 3 पाकिस्तानी स्मगलरों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन पर तारिकीन वतन को गुमराह करने के इल्जामात हैं। चंद माह कबल तुर्की से मुतादिद पाकिस्तानी शहरी पहले भी बाजियाब हो चुके हैं। इंसानी स्मगलरों ने उन्हें अगवा करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर वीडियो पाकिस्तान भेजी थी। पाकिस्तानी हुक्काम की दरख्वास्त पर तुर्क पुलिस ने उन्हें कार्रवाइयां करते हुए मुतादिद पाकिस्तानियों को बाजियाब कराया था। आखिरी खबर ईरान से। ईरान में इंसानी हुकूक के मुकरिब ज़राए अबलाग ने इंकशाफ किया है कि दारुल हुकूमत तेहरान की एफिन नामी बदनाम ज़मानत जेल में इजहार राय की पादाश में 17 ख़वातीन कारकुनान पाबंद सलासिल हैं, जिन्हें गैर इंसानी तर्ज अमल का सामना है। ईरान में इंसानी हुकूक के ग्रुप के ज़ेर इंतज़ाम हराना ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि ईरानी जेलों में कैद मर्द कैदियों के साथ ख़वातीन को भी गैर इंसानी सलूक का सामना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हिरासत में ली गई ख़वातीन में से 12 समाजी कारकुनान हैं। उन्हें दौरान हिरासत बदतरीन नफ्सियाती, ज़हनी और जिस्मानी अजियतें दी जा रही हैं। पाबंद सलासिल ख़वातीन को किसी किस्म की तिबी सहूलियात मैसर नहीं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंसानी हुकूक की सरकर्दा कारकुन नरजिस मोहम्मदी की सेहत गैर मामूली हद तक ख़राब है। गुज़श्ता अप्रैल में ईरानी सुप्रीम कोर्ट ने नरजिस मोहम्मदी को मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के इल्ज़ाम में 16 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। नाज़रीन, आज की ताज़ा 3 खबरें। अगली ताज़ा 3 खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।